And good evening, brothers and sisters. आप सबका स्वागत है भाइयों और बहनों। So we are doing the Bible study on Hebrews chapter 11, and today we will be seeing from verses 13 to 22. आज जो है हम 11वीं इब्रानियों का 11वीं अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसका 13 से 22 तक हम वचनों का हम अध्ययन करेंगे। So this chapter 11 is a chapter on faith. ये जो 11वां जो अध्याय है ये विश्वास के बारे में है। And so we have seen last time in the last meetings about the faith of Abel, the faith of Enoch, the faith of Noah, Abraham, and Sarah. हमने पिछले जो अध्ययन किया तब हमने जो है हाबेल का जो विश्वास, फिर इनोक, हानोक और नूह, और उसके बाद हमने अब्राहम और सारा का भी विश्वास के बारे में हमने अध्ययन किया। So all these are written, their stories are written in the Old Testament, and we are considering their faith at this time. इनके बारे में जो है पुराने नियम में लिखा हुआ है और हम उनके विश्वास के बारे में इब्रानियों की पुस्तक से का अध्ययन कर रहे हैं। So I particularly have been reading commentary. मैं एक कमेंट्री पढ़ रहा था to get some more understanding and more depth into these verses. इसमें और गहरी रूप से मुझे समझ मिलने के लिए। Okay, so I'll be sharing those things. मैं उन चीजों को भी बांटूंगा आपके साथ। While I was doing that, I myself have been encouraged and blessed. और जब मैं ये अध्ययन कर रहा था तो खुद से मैंने बहुत प्रोत्साहन पाया। So as I study this chapter 11, I want to study it for myself so that I can gain an understanding in a greater way. और मैं जब इसका अध्ययन करता हूँ मैं खुद भी चाहता हूँ कि इसके बारे में मैं और जानूं कि मुझे इससे प्रोत्साहन मिले। I can say that I have never studied Hebrews 11 like the way I am studying now. और जिस प्रकार मैंने अध्ययन अभी किया है वैसे मैंने पहले कभी नहीं किया। And I find that there are so many things inside this which probably I have not considered in a serious way. और इनमें ऐसी कई बातें हैं जो मैंने पहले कभी इसके बारे में गंभीर रूप से नहीं लिया। Yeah. So let us see verse 13. Let us read verse 13. All these died in faith without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth. 11वां अध्याय और उसका 13 वचन। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। Yeah, so here it's saying in verse 13, all these died in faith. That means all, we may think that it is all what we have read before in these verses. Suppose we think of what was considered was Abel, Noah, Enoch, Noah, Abraham, Isaac and Sarah. तो यहाँ कहा गया कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो अभी तक हमने जिनके बारे में अध्ययन किया, हाबेल और हानोक और नूह और अब्राहम, इसहाक और सारा, इन सब के बारे में लिखा है। But brothers and sisters, it's written here that all these died in faith without receiving the promises. और यहाँ लिखा है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। Now we know from here that Abel and Enoch and Noah, they did not receive these promises which Abraham, Isaac
Jacob and Sarah received. हम जो हमने अध्ययन किया इससे हम समझ सकते हैं कि हाबेल, हानोक और जो नूह है, इन्होंने जो भी अब्राहम, इसहाक और सारा ने पाया, ये सब बातें उन्हें नहीं मिली थी. Abel died in faith, and Enoch, Abel died in faith, and Noah died in faith. That is sure. जो हानोक जो हाबेल था और नूह, ये दोनों ही विश्वास की दशा में मरे. But the promises was not given to them. लेकिन जो प्रतिज्ञा की गई थी, ये वस्तुएं उन्हें नहीं मिली. So, and if you take about Enoch, Enoch also was a man of faith, but he did not even die. और हानोक भी एक विश्वास का दशा में था, लेकिन वो मरा ही नहीं. So, when it says all these died in faith without receiving promises, it is meaning about Abraham, Isaac, Jacob, and Sarah. और ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, ऐसा कहा गया है. तो सिर्फ अब्राहम, सारा और इसहाक, याकूब के बारे में कही गई है. So they received the promises that they will get the land of Canaan and all that. The land of Canaan will be given to their descendants. और उनको ये वादा किया गया कि उन्हें कनान देश जो है एक संपत्ति के रूप में उन्हें दिया जाएगा. But all of them died without receiving that promise that of the land of Canaan being physically given to them. लेकिन अगर हम जो शारीरिक रूप में देखेंगे तो उनको कनान देश नहीं मिला था. But they knew that the promise is there and it is for their descendants. That they knew. लेकिन वो ये जानते थे कि ये जो वादा प्रभु ने किया है वो उनके वंश के लिए, आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए दिया है, और इसमें वो आनंदित थे. And it says they welcomed them, they embraced those promises. और यहाँ लिखा गया है कि उन्होंने उस वादा या उस प्रतिज्ञा को अपनाया. And that also the promises were very far away, but the attitude was they embraced the promises, they welcomed them. ये जो वादा वो बहुत ही दूर था, उनसे बहुत दूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन जो परमेश्वर का वचन है उसे स्वीकार किया और उसे अपनाया. But they lived as strangers and pilgrims on this earth. और वो इस पृथ्वी पर परदेशी या अजनबी के रूप में वो इस दुनिया में जीते थे. Okay, so we go to now verse 14. For those who say such things, make it clear that they are seeking a country of their own. 14वां वचन, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं. So Abraham and his family were such that they were living in tents and they were frequently changing their the place where they was living. और अब्राहम और उनका जो परिवार था वो तंबुओं में रहते थे और वो एक ही जगह में नहीं रहते थे, वो बार-बार वो रहने का जगह बदलते रहते थे. And they were living in that place without purchasing any land for cultivation, things like that. और उन्होंने खेती के लिए ऐसे कोई जमीन नहीं खरीदा. Only when Sarah died, they needed a place for burial. So Abraham, this land actually where Abraham was promised by God, but they were still living as a stranger there. जो वादा किया गया देश था, वहाँ पर भी वो एक परदेशी के रूप में रहते थे. और जो जब सारा मर गई तब अब्राहम ने Abraham wanted a place for burial. तो वो चाहते थे कि दफनाने के लिए एक जमीन हो उनके पास. So only for the place of burial he wanted to buy a small property.
और उसी बात के लिए मरे हुओं को दफनाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा जमीन खरीदा. And this is a very interesting part of what happened. It is found in Genesis chapter 23. और ये बहुत ही दिलचस्प चीज है जब हम इसके बारे में उत्पत्ति का 23वां अध्याय में पढ़ेंगे. So the land belonged to some Hittites. वो जो जमीन था वो हित्ती लोगों का था. And a person by the name Ephron was the owner. और एफ्रोन करके एक आदमी था जो उसका मालिक था. So when Abraham asked Ephron, would you please give me this? I will purchase it for the full price, he said. तो जब अब्राहम ने उससे मांगा कि मुझे ये जमीन दे दो, मैं पूरा जो इसका कीमत है उसे मैं चुकाऊंगा. And Abraham had a very good testimony there. He was like, they considered him like a prince. और जो लोग वहाँ रहते थे वो अब्राहम के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे और उसे एक राजकुमार जैसा मानते थे. So they said, what is that? You can just bury your dead in my field, Ephron said. तो एफ्रोन ने उनसे कहा, अब्राहम से कहा कि तुम्हें खरीदने की क्या जरूरत है, तुम अपने मरे हुओं को मेरे ही जमीन में दफना दो. But Abraham wanted that place specially so that his descendants also could be buried there. लेकिन अब्राहम को वो जमीन अपने लिए चाहिए था कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उधर दफनाए जाएं. So he said, how much will be the price? So Ephron said the cost will be around 400 shekels of silver. और एफ्रोन ने उनसे कहा कि इसका जो दाम है, जब अब्राहम ने पूछा इसका दाम क्या होगा तो उन्होंने कहा कि 400 शकेल का दाम बताया. So that is a very, very big amount. वो बहुत ही ज्यादा कीमत है. But Ephron said, it's okay. I mean, what is that? But Abraham bowed down very respectfully and took out that 400 shekels and purchased that. और एफ्रोन ने उनसे कहा, ये तो आपके लिए एक बहुत छोटी बात है, ये इसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब्राहम ने माना नहीं उसको और उनके सामने दंडवत किया और उन्होंने वो कीमत उसको दिया. So that is called the cave. That is called the cave of Machpelah. और उसे जो है मकपेला का गुफा कहा जाता है. At a place called Hebron. और हेब्रोन की भूमि में है वो. And this place is still a place of contention even in the present time. और आज भी इसके बारे में बहुत मतभेद हो रहा है. Okay, so that is Hebron comes in the place at present in the West Bank area, which is controlled by the Palestinians. और आज का जो इस्राएली देश है वो आज भी आज के दिन में जो ये मकपेला का गुफा है वो वेस्ट बैंक के एक जगह है, वहाँ है जिसका जो है फलस्तीनी लोग उस पर राज करते हैं. So other than this burial place, Abraham did not have any property there, even though it was promised to him, and he lived with an attitude that he was seeking a country. He was still seeking a country where he could settle down, which is given by God. और परमेश्वर ने उनको वादा किया था कि ये कनान देश उन्हें मिलेगा, लेकिन इस वायदे के बावजूद वो अब्राहम जो था वो एक अजनबी के रूप में उस देश में रहता था, क्योंकि उसे अब भी ये आशा थी कि परमेश्वर का दिया हुआ एक जो स्थायी जगह है वो उसे मिलेगा. One thing we can learn from Abraham is that he did not go ahead of his time. God did not say now it is the time. God said your descendants are going to have it. So he did not act as though it is his own. तो हम इससे एक सीख हमें मिलती है कि जिस प्रकार अब्राहम ने जाकर उस जगह पे कब्जा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं ये जमीन तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को दूंगा, तो इसका इंतजार किया
अब्राहम ने, और पहले से ही जाकर उन्होंने उस पर कब्जा नहीं किया। So his mind was not on this possession of this land, but his mind was on the land which God is going to give him in heaven. क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि अब्राहम को जो दृश्य था या लक्ष्य था वो इस जमीनी या जो संसार की बातों पर नहीं थी, लेकिन उनका जो नजर है वो स्वर्गीय बातों पर टिकी हुई थी। It's a great example for us that our concentration, our mind should not be on the possessions of this earth, but on our citizenship in heaven, and our thoughts and mind should be primarily on that. इसीलिए इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमारा जो नज़र है इन जो इस धरती के जो संपत्ति है इस पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमारा जो नज़र है वो स्वर्गीय बातों पर, जो स्वर्गीय जो वादा प्रभु ने हमारे लिए किया है उसी पर हमें रखना चाहिए। Verse 15, and indeed, if they had been thinking of that country from which they went out, they would have had opportunity to return. और 15वां वचन, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। So Abraham, where did he come from? He came from a place near to Iraq. You know? अब्राहम किस देश से बाहर निकलकर आया था? वो उस देश का नाम वो जो था वो इराक देश में था। So Abraham was not actually a person from the place of Israel. He was a person from near the two rivers, Euphrates and Tigris, that is Iraq. तो इससे हम समझ सकते हैं कि अब्राहम जो था वो जो इजरायली देश का रहने वाला नहीं था, वो इराक से जो दो नदियों के बीच में जो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी है उसके पास जो देश है उधर से वो निकला हुआ था। And so because God told him to come, they came all the way with all difficulties. They came to this land of Canaan. और बहुत दूर वो यात्रा कर इस कई कठिनाइयों का सामना करके वो इस जगह में पहुंचे। And they were living as strangers and sojourners there. और वो इस जगह में परदेशी या अजनबी बनकर वो जी रहे थे। So suppose they were thinking of that place, my place there in Iraq. Suppose they were keeping on thinking of that, so nice place it is and all that. Then they would have a mind to go back to that place. तो जिस देश से वो निकल कर आए थे यदि उसकी सुधि करते या उसी के बारे में वो सोचते कि अरे मैं तो इराक से निकल कर आया था, वो जगह कितना अच्छा था, उसी के बारे में वो सोचते रहते तो But they confessed that they was, they confessed. There is a verse which says they confessed they were strangers and sojourners in this land. लेकिन उनके बारे में एक ऐसा वचन है जहाँ कहा गया है कि उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि वो इस देश में परदेशी बनकर जी रहे हैं। So it means if they confess that they were strangers and sojourners, it means that they had no desire to go back. तो अगर उन्होंने ऐसा कहा कि हम इस देश में परदेशी हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि उनको कोई इच्छा नहीं थी कि वो उस देश में वापस जाए जहां से वो आए थे। They preferred to be here where God wanted them, in spite of all the inconvenience and hardships. और उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी उनका ये इच्छा नहीं था कि वो इस देश को छोड़कर वो चले जाएं। So the same thing is for us also, as the children of God, as believers in Christ. If we think of the things that we have left and say, and it is not very difficult for us to go back. तो हम भी विश्वासी होते हुए हमें बहुत सारी चीजें छोड़कर आनी पड़ी हैं, तो अगर चाहे तो हम इनके बारे में सोचते बैठ सकते हैं
और हमारी मन में इच्छा हो सकती है कि हम उन चीजों के पास वापस चले जाएं। See, I've left all this. I've left so many good things. I'm not, and we keep on thinking that it is not difficult for us to go back. अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे कि अरे मैंने बहुत सारी अच्छी बातें छोड़कर मैं आई हूँ, तो फिर ऐसे में हम वापस जा सकते हैं। And many of our friends and relatives would be very happy to have us. और हमारी बहुत सारी जो रिश्तेदार हैं और जैसे दोस्त हैं, तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी अगर हम वापस चले जाएं। But a true believer will, how he will feel is that I have tasted those vain things, those things which are really not having a real significant value eternally, and I have been pursuing some things which are much more eternal and much more of high value, and I want to just pursue that, just like Abraham and his family. तो हम जो विश्वासी हैं, हम अगर सच्चे रूप से हम यीशु के पीछे चले हैं, तो हमारा ऐसा मन होगा कि मैंने जो बातें छोड़ दी है पीछे, वो सब व्यर्थ की बातें हैं और मेरी अभिलाषा अभी उन चीजों पर नहीं है, लेकिन मैंने जो स्वर्गीय बातें जो मैंने देखी है और मैंने चक्कर देखा है, अभी मैं उसी पर मेरा मन लगा हुआ है। And we too live like strangers and pilgrims on this earth, because we know that our citizenship is in heaven. Not this world is not our home. तो हमारी जो इच्छा है और हमारी जो लालसा है, लक्ष्य है, वो स्वर्गीय बातों पर ही रहेगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी नागरिकता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी स्वर्गीय नागरिकता है, और इसी को लक्ष्य में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। Verse 16, but as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. 16वां वचन, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। So when they confessed that they were strangers and sojourners, they showed that they sought Abraham showed that he sought a better country than the one in which they had left. जब उन्होंने ऐसा कहा कि वो इस देश के नहीं है, वो परदेशी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने लक्ष्य के रूप में एक स्वर्गीय देश का नजारा उन्होंने देखा है। So they lived as they had no expectation of a permanent home on earth and were looking to another world, a heavenly country. और उनकी इस दुनिया में और कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, और वो जो है एक स्वर्गीय देश चाहते थे। So while they were there in the land of Canaan, they did not think of conquering some place, some land, and doing some cultivation there. All those things, they did not even have that plan. जब वो उस देश में रहते थे, तब उन्होंने किसी जमीन के लिए लड़ाई नहीं की, या युद्ध नहीं किया, या किसी जमीन को खरीद कर वहां वो उसे जोतने नहीं लगे। ऐसी उनकी कोई भी अभिलाषा नहीं थी। Because they were following the instructions of God in their life. क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर की जो इच्छा है उसे पूरा करना चाहते थे। The only thing, the land which they bought was the land for the burial. और जो जमीन उन्होंने खरीदा, वो सिर्फ जो मरे हुओं को दफनाने के लिए जो उन्हें जरूरत थी, सिर्फ उसी बात के लिए उन्होंने वो जमीन खरीदा। So when they lived such a life, as it says in verse 16, God was not ashamed to be called their God. इसी कारण, क्योंकि वो इस प्रकार जी रहे थे इस देश में, इसीलिए परमेश्वर ने भी वो लज्जाते नहीं थे कि कहने के लिए कि वो इन लोगों के परमेश्वर है। So their life and manner was such that God said, I will be their benefactor, I will be their protector, I will be their friend. तो परमेश्वर भी कहने के लिए वो चूकता नहीं था कि मैं ही
इन लोगों के लिए सब भलाई करूंगा, सब उनका सब देख रेख करूंगा, उनको उनकी रक्षा करूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। That is what God is. तो परमेश्वर ऐसा ही है। He's our protector. He's the one who gives us all the benefit and blessings, and He's the one who's our friend. वो हमारा दोस्त है, वो हमारा देखभाल करता है और वो हमारा रक्षा करता है। So God wanted to be the God to these people. परमेश्वर खुद ये चाहता था कि वे इन लोगों का परमेश्वर हो। And He had prepared a city for them. और उन्होंने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। Not a city here, but city in heaven. और उन्होंने उनके लिए इस संसार में नहीं, लेकिन स्वर्ग में उनके लिए एक नगर तैयार किया है। The Revelations talk about a city which is there. The heavenly Jerusalem is a city. तो हम इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं कि एक ऐसा नगर है जो प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, जो यरूशलेम का नगर है। Now, brothers and sisters, this is verses 17, 18, and 19 are absolutely great verses on the faith of Abraham. और 17, 18 और 19 वचन जो है अब्राहम के विश्वास के बारे में बहुत ही अद्भुत बातें हम उनके एक असाधारण जो विश्वास है उसके बारे में हम देख सकते हैं। So verse 17 says, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was offering up his only begotten son. विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। So we read earlier about Abraham obeyed in verse 8 that Abraham obeyed God from going from the place which he did not know. We read in verse 8. हमने 8वें वचन में पढ़ा कि अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। And now we read again in verse 17, by faith Abraham, when he was tested. अभी फिर से हम 17वें वचन में पढ़ते हैं कि विश्वास से अब्राहम ने। So here we see one of the most extraordinary acts of faith ever in the world. तो हम एक ऐसी बहुत ही असाधारण जो विश्वास का जो कार्य है हमें देखने को मिलता है, जो और कहीं हमें ऐसा दिखाई नहीं देगा। So yeah, so in this it says when he was tested. और यहाँ लिखा है कि वो परखा गया। So God knew about Abraham's faith. God also said, "You're a righteous man because of your faith." और परमेश्वर जानता था अब्राहम के विश्वास के बारे में, और परमेश्वर ने कहा कि तू एक धार्मिक व्यक्ति है क्योंकि तू विश्वास करता है। So Abraham already proved that he was a man of faith in Genesis 15 when he believed what God promised, that he will get descendants like the stars of the heaven. और उनके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें जो है तारों के समान या जो रेती के समान तुम्हें तुम्हारी वंशज होगा। But now God was trying to strengthen or establish this faith of Abraham. लेकिन परमेश्वर जो है वो अभी उनके जो इस विश्वास को और दृढ़ बनाना चाहता था। So God was not trying to say that now Abraham will fail in this. No, not that. He wanted to see that this faith which he had is a strong faith.
परमेश्वर ये नहीं चाहता, ये नहीं कह रहा था कि इस परीक्षा के द्वारा कि हाँ अभी ये फिर गिर जाएगा, लेकिन वो जो विश्वास था जो अब्राहम का, उसे और भी दृढ़ करना चाहते थे. That's the same way God allows testing of our faith, not that we will to prove that we are going to fall, but that to make it more strong. इसी प्रकार हमारा भी परमेश्वर जो है विश्वास को परखता है, इसीलिए नहीं कि हम गिर जाएं, लेकिन इसीलिए कि हम अपने विश्वास में और दृढ़ हो जाएं. So it says he offered up Isaac. तो यहाँ लिखा गया है उन्होंने जो है इसहाक को बलिदान चढ़ाया. Now God gave Abraham Isaac as after a great promise, and now God is asking him to offer, and he offered him back. तो जो प्रतिज्ञा के पूरा करने में ही इसहाक एक बेटे के रूप में दिया गया था, लेकिन उसी को परमेश्वर ने बलिदान के रूप में चढ़ाने को कहा. He offered him back because he knew that he who did this miracle of giving Isaac was able to continue doing the miracle of giving that Isaac back. और उसने इसीलिए बलिदान चढ़ाया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि जिस परमेश्वर ने ये चमत्कार किया कि उन्हें उनके जो जब वो बूढ़ा था उन्हें एक बेटा दिया, ऐसा प्रभु जो है फिर से चमत्कार कर सकता है और वो उन्हें वो जो मरे हुओं में से भी उसे जिला सकता है. Verse 18 says, "It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called." और 18 वचन में कहा है, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा. So God had clearly said, given the promise that in Isaac, not in Ishmael, not in the sons of Abraham's other wife Keturah, but in Isaac your descendants shall be, your seed shall be called. परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की थी कि इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा, और ये नहीं कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि इश्माइल से या केतुरा के जो उनकी दूसरा जो पत्नी थी उनके बच्चों से उनका जो वंश बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसहाक से ही उनका वंश कहलाएगा. So we can say that Abraham did not consider now God had promised one thing and now he's changing it. All those things did not go in his mind. He just obeyed God's command. उन्होंने ऐसे अपने मन में तर्क नहीं किया कि परमेश्वर ने ही खुद मुझे ये प्रतिज्ञा दी थी और मुझे इसहाक को दिया था और फिर से ये क्यों मुझे इसे वापस मांग रहे हैं, ऐसे उन्होंने कुछ संदेह नहीं किया परमेश्वर के ऊपर. A man of lesser faith, like we can say about us, we will consider, is this of God? Should I confirm it and this and that, and we will be doing so many things. But here was Abraham. Abraham was just listening to the command of God and just doing it. एक इससे जो कम विश्वास वाला व्यक्ति, जैसे हम अपने खुद के बारे में भी कह सकते हैं, अगर हमसे प्रभु ऐसे कहते तो हम ऐसे ही तर्क करते हैं कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा मेरे साथ किया. So his willingness to offer a son was which he got from his old age, and the only son from his beloved wife Sarah. The readiness to obey that at the command of God, that was the extraordinary and wonderful faith of Abraham. और उनके इस जब वो बूढ़े हो गए थे तब उन्हें इकलौता एक पुत्र मिला था, और अपनी जो प्रिय पत्नी थी सारा, उनसे जो पुत्र उन्हें मिला था, उसी को जब परमेश्वर ने कहा कि तुम वापस उसे मुझे दे दो, तो उन्होंने उस पर प्रश्न नहीं उठाया. And now verse 19 is a wonderful verse. It says, he considered that God is able to raise men even from the dead, from which he also received them back as a type.
और 19वें वचन में कहा गया है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। So this is a very astounding thing that Abraham, and this is not written in Genesis, but this is written in Hebrews, that Abraham, when he was going to do the sacrifice, he considered that God is able to raise men even from the dead. तो ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि इसके बारे में उत्पत्ति के पुस्तक में तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कहा गया है कि अब्राहम ने ऐसे विश्वास किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि वो मरे हुओं में से भी लोगों को जिला सकता है, ऐसा विश्वास था उनका। So otherwise, how that promise will be fulfilled? And through Isaac, unless now he is sacrificed, but unless God raises him from the dead, the promise will not be fulfilled. So Abraham believed that God is able to raise him from the dead. तो अगर परमेश्वर ने उनसे इसहाक का ही बलिदान चाहा, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि तेरा वंश इसी से कहलाएगा, और अगर परमेश्वर ऐसे कहता है, तो अगर वो प्रतिज्ञा पूरा होना है तो उन्हें, अगर वो मृतकों से ही जलाएंगे तभी ये पूरा हो सकता था। इसीलिए उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि परमेश्वर जो है इस बात के लिए सामर्थी है कि वो मरे हुओं से भी जिलाए जा, लोगों को जिलाए के लिए वो काबिल है। So this is evident from the verse in Genesis chapter 22 verse 5, which we'll read. हम इसके बारे में उत्पत्ति का 22वां अध्याय और उसके 5वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। So when Abraham and Isaac was about to go there, he told some men also had, young men also had come. So he told, and Abraham said unto his young men, abide here with the ass or the donkey, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. और 22 का 5वां वचन, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहाँ ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। Basically what was written was, and we will return. और इसका ये मतलब है कि हम वापस आएंगे, लौट आएंगे। So this is what Abraham's faith was. तो ऐसा विश्वास था अब्राहम का। So Abraham, it says in verse 19, from which he also received him back as a type. और 19वें वचन में लिखा है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। So Isaac to Abraham was in all what do you say, he was dead. तो अब्राहम के लिए इसहाक तो मर ही चुका था। Yeah, in his mind Isaac was dead. उन्होंने अपने मन में स्वीकार किया कि इसहाक जो है वो मर गया। In his mind and his heart he had given up Isaac. उसने अपने हृदय और मन से उन्होंने जो इसहाक को समर्पित कर दिया था। And he was prepared to offer him as a sacrifice. और वो उसे बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार थे। So Isaac was there on that altar as a one person who was dead. और वो उस जो बलि का जो वेदी था उस पर एक मरा हुआ व्यक्ति के समान अब्राहम ने इसहाक को देखा। And it was only because of the voice of God he was not sacrificed, but the lamb was sacrificed. It's only because of God's intervention at the last moment. और क्योंकि परमेश्वर ने मतलब उधर वो दाखिल हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, इसीलिए अपने हाथ
को उन्होंने जो इसहाक को मारने से उन्होंने पीछे हटा दिया। Yeah. So Abraham received Isaac as a resurrected person. और अब्राहम के दृष्टांत में उन्हें ऐसे ही लगा कि वो कि इसहाक जो है मृतकों में से जी उठा है। There's a beautiful verse in John chapter 8. एक बहुत ही सुंदर वचन है यूहन्ना के 8वां अध्याय में, verse 56, I think. और उसका 8 का 56. Yeah. John 8:56, Jesus said, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया. So Abraham, the man of faith, could see so many things into the future which a normal man could not see. जो अब्राहम जो विश्वास का मनुष्य था, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक आम व्यक्ति नहीं देख सकता है, उन सब चीजों को भविष्य में अब्राहम वो देख पाया. Brothers and sisters, Abraham is the father of faith. अब्राहम जो है विश्वास का पिता है. And he demonstrated a great faith when he believed God when God gave a promise. और जब परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की तो उन्होंने एक बहुत ही असाधारण जो विश्वास उन्होंने दर्शाया जब उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया. And it was further attested by his obedience when he offered up Isaac. और जब उन्होंने आज्ञा मानकर इसहाक का बलिदान चढ़ाया तो वो और भी उसमें स्थिर हो गया. So he is a great example for us in our walk with the Lord. तो हमारे इस विश्वास के जीवन में वो हमारे लिए एक बहुत ही उदाहरण है, बहुत ही बड़ा उदाहरण है हमारे. And Romans chapter 4 says that this faith of Abraham we also ought to have. तो और रोमियों के 4 अध्याय में कहा गया है कि हमें भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए. I'm blessed by when I was reading this commentary, and I hope all of us are also encouraged. और मैंने जब ये इस पुस्तक में इसके बारे में पढ़ा तो मैंने बहुत प्रोत्साहन पाया, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको भी इससे प्रोत्साहन मिला होगा. May God help us to walk be people of faith who look for the heavenly country, not this present world. तो ऐसे ही हम भी विश्वास के लोग बन जाएं और हम अपना जो नजर है इस दुनिया में लगाए ना रखें, लेकिन जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं उन पर हम अपना नजर लगाए रखें. Amen. Faith is something that we need to understand that when we speak about faith, it is to be trusting in the word of God completely, and the promise that he has given us that we will receive it. So we should. Yes, sister, go on. हमें समझना चाहिए कि विश्वास का मतलब ये है कि जो भी परमेश्वर ने हमें वादा दिया है और जो भी वचन परमेश्वर का वचन है उस पर हम पूरी तरह हम भरोसा रखें. Our faith will be always tested. हमारा जो विश्वास है वो हमेशा परखा जाएगा. And it will be tested so hard that sometimes we are totally broken. और कई बार परमेश्वर हमें इस तरह हमें परखेगा कि हम पूरी तरह टूट जाएंगे. But the one who endures that suffering, stands strong on the word of God, that person will always come through it. और जो व्यक्ति उस वचन के ऊपर विश्वास करके वो खड़ा रहेगा, वो इस जो परीक्षा है उसमें से सफल निकल आएगा. When we are tested that time,
God takes everything away from us. जब हम ऐसे जब परमेश्वर हमें ऐसे परखता है तो हमारे से वो सब जो चीजें हैं वो हमसे वो दूर कर देता है. God will never test you when you have all the riches, when you have all the good things. जब हमारे पास सब धन दौलत और सब चीजें जो हमें जरूरी है वो सब हमारे पास है, तब प्रभु हमें नहीं परखता है. But when all that is taken away, like Job's, everything was taken away from him, Job's faith was tested actually. जिस प्रकार अयूब के जीवन में भी उसका जो भी था सब संपत्ति सब लूट गया, तभी उसका जो है परीक्षा किया गया. That's the time how strong do we stand on the word of God. तभी हमें समझ में आएगा कि हम इस जो प्रभु का वचन है उस पर हम कैसे हम विश्वास करते हैं और क्या हम मजबूत हैं. It's very easy to say, I trust God, I believe in God, I love God, when all the good things you have been surrounded with. और हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, जब हमें सब आशीषें हैं मिल रही है, सब हमारे पास है, तो हम ऐसे आसानी से बोल सकते हैं. I'll give you my testimony. 1.5 years I'm without a job, but I still trust my God. मेरा 1.5 years से मेरा कोई जॉब नहीं है, फिर भी मैं परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखता हूँ. It's not only me, my entire family. सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी मेरे साथ. Because of that, He is still providing us, He's taking care of us, इसीलिए प्रभु feeding हमारा us. देखभाल करता है और हमारा पूरा ख्याल रखता है. And I do believe that in this test of mine, what God has given me, not me, my entire family is going through, that we are not becoming weak, but we are just going stronger and stronger in the word of God. Amen. और इस परिस्थिति में मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी मैं देख रहा हूँ कि हम और सामर्थ्य हो रहे हैं अपने विश्वास में.